By the mid 20th century, woke had come to mean as well informed or aware. It means wanting to be considered correct and wanting everyone to know just how correct you are. Exactly how superiority complex works. Although this new generation has brought new norms and has given us cool terms such as baddie. Red flags these days are so classy and we need to stay up to the mark. By demeaning the culture because it's so low class? Why would you wear a dhoti to a club because it's cliche, but you can obviously wear bikini in a mall? Because that's silly. The norms that women should get equal opportunity such as smoking, drinking, cheating and some career opportunities as well. Make your own judgment. हम तो बस report करते हैं. By the way, you might be thinking, who am I? It's better if you don't know. Cause I'm not woke. I'm just pretending to be one for this video. So let's get started. Who the hell are you to comment on my clothes? Huh? Who are you? But in the West, you're very, what's the word? Woke. The youth is in danger. Wokeism is a new disease that is spreading throughout the country. In a developing story, we got to know that wokeism has the ability to change your outlook, your personality, your individuality, and even your appearance. Now, to get more into the details on what this wokeism particularly is, we have got some people that will share their insights. This is me, Jyotishma Borwa, with camera person Ananya Iyer, reporting live. Stay tuned with Siddi's Commentary Cafe. Hello, ma'am. Would you like to share some insights on this so-called woke culture that this new generation has come up with? Basically, so the woke culture was brought by the black community. The Black Lives Matter. They are the ones who brought upon the woke culture, where they were trying to brought upon the justice. But nowadays, as the youth has taken it up in the long way. When they say about the woke culture, it's all about some of them have brought upon normalized things that are not completely related to the woke culture. So the woke culture in the youth is definitely different. Guys, we have found a candidate from the millennial generation who can give us their insights on wokeism. So, ma'am, would you like to share some insights on this woke culture and what is the take of millennial generation on this? Okay, so first of all, we have to understand this कि wokeism is a different definition for everyone. मेरे लिए definition is different. आपके लिए you all are Gen Z. आप लोगों के लिए definition is so different. तो जब हर किसी के लिए definition different होती है तो उसका meaning भी बदल जाता है. अब अगर हमारे 90s kids की हम बात करें तो हमारे लिए woke जैसा कुछ था ही नहीं. अब आप मुझसे पूछे आज की generation का, क्योंकि हम 90s वालों ने सब देखा है. वो दौर भी देखा है जब फोन नहीं थे, पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक फोन हुआ करता था, और ये भी देखा है कि एक ही घर में एक के पास 2 फोन है. तो अगर इस समय हम वो को एक्सप्लेन करें तो आप लोगों का वोकिज्म क्या है कि यू ऑल आर ब्लाइंडली फॉलो ईच एंड एवरीथिंग. इंस्टाग्राम में फेमिनिज्म की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, वोक कल्चर की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, मस्कुलाइन की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है. अगर आज की डेट में एक लड़की को पूछा जाए कि आपका फ्रीडम क्या है, तो उसके लिए फ्रीडम है पब जाना, अर्ली एज में सिगरेट पीना, मल्टीपल पार्टनर्स रखना, या फिर हम कहें चीटिंग नाउ डेज इज वेरी इजी, क्योंकि आप लोग सोचते ओ अगर हमने ये फॉलो नहीं किया तो शायद हम पीछे हट जाएंगे. आज की डेट में हम अपना नेगेटिव या अपना जो एक बोलते हैं माइनस, हम कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करते. वी ऑल आर लाइक कि हम पे तो कमी है ही नहीं, फॉलो करना है. वोक क्या होता है? जगना, आंखें खोल के पूरी दुनिया को अपनी नंगी आंखों से देखना, नेकेड व्यू. लेकिन हमने इतने सारे फिल्टर्स और पर्दे लगा दिए हैं कि जो इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया बोल रहा है, दैट इज द वोक कल्चर. Okay, audience, now we would like to get into some more insights about this woke culture from the people right here. Oh my god! Oh my god! Why are you taking our video without our consent?
Oh my God! बंद करो, इसे बंद करो, इसे ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सो मैम, क्या लगता है आपको कि ये जो वोक कल्चर है ये आज की जनरेशन को ये कहाँ लेकर जा रही है? बीमारी है भाई साहब, मैं तो ये कहूंगी बहुत भयंकर। कोविड-19 से महामारी फैली थी, उससे भी खतरनाक बीमारी आ गई है। ये शुरू अमेरिका से हुई थी या हिंदुस्तान पहुंच गई। अमेरिका तो निवारण कर लेगा इसका, जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ गए हैं तो पर मोदी जी भी करेंगे धीरे धीरे। टिकटॉक को निकाल दिया है, मौज को निकाल दिया है अभी धीरे धीरे करके। ये वो जी, ये वोक के चौधों की तरफ से मेरी तरफ से बहुत बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपके, क्योंकि ये मेरे ही एज के कुछ लोग हैं जिन्होंने इस बीमारी को फैला रखा है। आजकल मास्क लगा के घूमना पड़ता है ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए। बहुत सत्यानाश कर रखा है इन्होंने हमारी सोसाइटी का। वो वोकिज्म के नाम पे ये ऐसे घूमते हैं जैसे रेड फ्लैग होना बहुत प्राउड की बात है, हम बहुत अच्छे लोग हैं। फेमिनिज्म के नाम पे नंगे घूम रहे हैं ये लोग, हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। ये बहुत भयंकर बीमारी है भाई साहब, बच के रहिए। I mean, अरे इसको हटाओ यार, हटाओ, कट। भाई मेरे को पता है क्या समझ में आया, मैं ना जैसे श्रीदेवी अपने पति को बेचाती है ना उस मूवी में, कौन सी थी वो, जुदाई। जैसे जुदाई में श्रीदेवी अपने पति अनिल कपूर को बेचाती है ना, भाई मैं भी बेचाऊंगी अपने पति को। करिए मेरे को ना पुरानी सोच वाले, रूढ़ीवादी सोच वाले बुड्ढों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मजे आते हैं भाई। जैसे मेरी दादी ट्रिगर होगी भाई, वो कहती है अब ऐसे कपड़े, हमारी भारतीय सभ्यता वगैरह, पता नहीं व्हाट बुलशिट भाई, दिमाग खराब कर दिया भाई बुड्ढी ने। बट I'm gonna wear what I wanna wear. क्या बोलोगे? I look nice. भारतीय सभ्यता can itself. NCM India, thanks for raising your voice against my brutal ideologies. बट उसकी मेरे को कोई वैल्यू नहीं है बहन। और भाई मैं अपने पति का स्लेव ट्रेड करूं, मैं उसको किसी और से उसको मरूं, या मैं उसको बेचूं, या मैं उसको मतलब झाड़ू पोछा लगवाऊं, वो हम दोनों के बीच की बात है। के बाद फोटो तक नहीं रखते, अपने मोबाइल में डिलीट कर देते हैं। और इसने अपनी आईडी पे पूरी की पूरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सीरीज पटक के रखी हुई है उसके याद में। और ऊपर से ब्रेकअप के बाद हमारी जेंजी बुआ दुखी नहीं होती है, वो सिखाती है कि कैसे आप सैडी से बैडी बन सकते हैं। जी हाँ, दुखी क्यों हो रहे हो रिलेशनशिप के बाद? ये क्यों सोच रहे हो कि आप जिंदगी का कुछ उद्धार करेंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, उस सामने वाले इंसान को प्रूव करेंगे कि क्या खोया है उसने? नहीं, मजे करो, गलत रास्तों पे निकले। मैं बोलना नहीं चाहता, समझ गए ना? और वोक यानी कि इस दुनिया के नए संस्कार। यहाँ पे हम सब अपने आप को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हमने ठेका ले रखा है हर चीज़ को सपोर्ट करने का, हर चीज़ पे वॉइस आउट करने का। बट वोकिज्म वाज ओरिजिनली मेंट अवेयरनेस फैलाने के लिए, अपना वॉइस रेज करने के लिए, लोगों के ओपिनियन को जज ना करने के लिए, दूसरे पर्सपेक्टिव को स्पेस देने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है? Like after watching all these videos, I feel like कि एक बार तुम सोचो कि अगर इसी वीडियो में जेंडर रोल चेंज कर दिया जाए, अगर कोई लड़का ये बोलता कि मैं अपने पत्नी को बेच दूंगा, तो पता नहीं इंस्टाग्राम पे वो शायद कैंसल हो गया होता। You know, things are different when it's about different genders. You cannot sit in your 4x4 का रूम एंड से कि मैं ये क्रॉप टॉप पहन रही हूँ अपनी दादी को ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट नहीं था। पॉइंट हमेशा से ये था कि हमें जज ना किया जाए कि हम क्या कपड़े पहन रहे हैं। जस्ट बिकॉज तुम एक पॉइंट करना चाह रहे हो, रखना चाह रहे हो, डिड नॉट गिव यू अथॉरिटी कि तुम अपने एल्डर्स को डिसरेस्पेक्ट कर दो। क्योंकि ऑफ कोर्स पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय उर्फी जावेद, शी इज सो कूल, शी इज सो बोल्ड, everybody is bold, everybody wanted to just be themselves. I know in this world we have to be ourselves, but ethics is a thing. ये जो coolness दिखाया गया ना सीरीज में, normalizing things like extramarital affair या women doing दारूबाजी and all and calling it equality या हम ये सब normal है, this is not normal bro. Cheating was never normal. Feminism cheat करने के लिए नहीं बना था। मतलब देखो, तुम ये भी नहीं बोल सकते हो कि हम ये सब चीजें अमेरिका से आ रही है, हमने ये सब चीजें अमेरिका से सीखी, बिकॉज अमेरिका हैज गॉन वे हायर देन दिस। आई मीन अमेरिका इन सब चीजों से ऊपर उठ गया है। लिसन, देखो, वोक होना गलत नहीं है, समझदारी होनी चाहिए। वोक इज अ गुड कॉन्सेप्ट जो अभी बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत कलरफुल बनते जा रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है। वोक इज अ गुड कॉन्सेप्ट। वोक का मतलब है अवेयरनेस क्रिएट करना, अपना वॉइस रेज करना। आई थिंक
कूल बनने के लिए लोग आजकल कंटेंट क्रिएशन के कोर्सेज भी ले रहे हैं, तो इस दुनिया में तो देखो कुछ भी हो सकता है. आई कैन नॉट गारंटी यू ऑफ एवरीथिंग, बट जस्ट बी श्योर ऑफ व्हाट यू आर वॉचिंग और सबसे इन्फ्लुएंस मत हो. और अगर तुमको वोक ही होना है तो पहले ये सोचो कि क्या तुम सच में कुछ चेंज कर रहे हो, क्या सच में तुम कुछ बदल पा रहे हो, कोई डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, या फिर सिर्फ एक 4x4 के कमरे से ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो एक्चुअली माइंडलेस है. दैट्स इट. सो देखो, अब हम ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे because I am not woke. तो इसी के साथ और कंटेंट के लिए जल्द मिलते हैं सिद्धीज कमेंट्री कैफे पर. So, ladies and gentlemen, you might have got the idea what wokeism really is. It is quite contagious, and I request you to stay safe and stay far from it as much as you can, as it can make you really, really sick. And अरे जल्दी जल्दी करो ना, क्यों, क्या हो गया? रील बनानी है मुझे चुटकुले पे. But you don't even like that song. तो ट्रेंड में है ना. Woke